ایک آدمی کا سوال ہے، سوال ہے یہاں کے لوگوں کا۔ اچھا تو میرے خیال سے ایک ہی طرح کے سوالات ہیں۔ اچھا، میں سارے سوالات کو پڑھ دیتا ہوں، ایک ساتھ میں جواب آپ کو دے دیں گے۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ کو خیر دے۔ سوال ہے، اس بریٹا گاؤں میں پانچوں وقت میں فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر باجماعت اجتماعی دعا ہوتی ہے، کیا یہ عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ سوال، اس گاؤں میں جمعہ کے دن 2 اذان ہوتی ہے، پہلی والی اذان مائک پر اور دوسری والی منہ میں، کیا یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ تیسرا سوال ہے، تیسرا سوال اڑ گیا۔ کوئی بات نہیں، کوئی شخص قرآن کو ہر اعتبار سے غلط پڑھتا ہو، وہ امام ہے، اس کے پیچھے حافظ و قاری نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا غلط قرآن تلاوت کرنے والے کے پیچھے نماز ہو جائے؟ کیا نماز کے لیے ٹوپی شرط ہے؟ جواب، گٹکا، پان، سگریٹ، گول کرنا حرام ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو سوال کا جواب خود ہی دے دیا ہے۔ کتنا دن تک لڑکا یا لڑکی یعنی بچہ یا بچی کی پیشاب کی چھیٹا لگ جائے تو نماز ہوگی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب۔ تجارت کرنے کے لیے گروپ لون روپیہ لے کر تجارت کر لے تو کوئی گناہ ہے؟ اگر گناہ ہوگی تو وہ روپیہ بھی حرام ہو جائے گا۔ پتہ نہیں سوال کون کیے ہیں، سوال بھی کر رہے ہیں، خود جواب بھی دے رہے ہیں۔ بہرکیف ایک ہی طرح کے لگ بھگ سوالات ہیں، صحیح شاید سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، سوال و جواب کا سیشن ہونا چاہیے، اور میں ہر جگہ بولتا ہوں ہونا چاہیے، اور ذہن میں جو بھی بات آئے بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ جب تک آپ اسلام کو نہیں جانیں گے تب تک زندگی صحیح سے نہیں گزار سکتے ہیں۔ میرے یوٹیوب کے اندر بیٹھ جائیے، یوٹیوب کے اندر میرے نمبر بھی موجود ہیں۔ میں نے کہا 24 گھنٹے میں کبھی بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے رات میں بیوی سے جھگڑا ہوا اور 12 بجے بولی صاحب یہ بتائیے تو آدمی کم سے کم اس کا بھی خیال کیا جائے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کبھی بھی، لیکن خیال دوسرے کا ہونا چاہیے۔ ابھی بہت سے سوالات ہوئے، ان میں سے جتنے بھی سوالات کیے، ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے کیا وہ اپنے استطاعت کے مطابق کیا ہے، ان کی نظر میں وہ سوال بڑا اہم ہے، تو اس وجہ سے ان تمام سوال کا میں جواب دینا کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح جواب دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سوال جو کیا گیا ہے وہ سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا اجتماعی دعا کرنا صحیح ہے؟ ہمارے یہاں اجتماعی دعا ہوتی ہے، کیا اجتماعی کرنا ایک دم بالکل ضروری ہے؟ میں اس کے تعلق سے یہ بتا دوں کہ الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا عبادتوں کا مغز ہے، یعنی دعا کے بغیر کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ آپ چلیں پھریں، ابھی بھی دعا ہی کر رہے ہیں ہم لوگ، تو دعا ہی کرنا چاہیے ہر وقت، لیکن فرض نماز کے بعد اگر امام صاحب دعا کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی دعا کیجئے، کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد آپ کا معاملہ ہو گیا کلیئر۔ اب آپ کی بیوی پریشان ہے، ہاں آپ کی بیوی بیمار ہے، آپ کی ماں بیمار ہے، آپ فوراً اٹھ کر کے جائیے اور ماں کی خدمت کیجیے، ماں کو دیکھیے، ہاسپٹل جائیے۔ آپ کا بچہ بیمار ہے، فوراً اٹھا کر کے لے جائیے۔ نماز آپ نے پڑھ لی، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اب امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، اور امام صاحب لمبی دعا مانگ رہے ہیں، 10 15 20 منٹ۔ اب کسی کو پیشاب لگا ہے، میری سب جلدی سے بند کرنا یار، مجھے پیشاب لگی ہے۔ ہاں امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے شادی کرا دے، اور آپ کی بھی شادی ہو گئی، تو اب آمین بولیے گا۔ آپ کی بیوی چپل سے نہیں مارے گی۔ آپ کی زندگی میں بیٹا ہے، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، بیٹا دے دے۔ اب بیٹا نہیں، اب بیٹا، اور کسی کے یہاں بیٹی ہی بیٹی ہے، تو بتائیے کیا کسی کے یہاں بیٹا ہی بیٹا؟ تو اجتماعی دعا جب کلیئر ہو جائے، کوئی معاملہ ہو کہ بھائی کورونا وائرس ہو گیا، ہمارے یہاں مصیبتیں، ہمارے یہ وہ ہے، تو اعلان کر کے بھائی اجتماعی دعا کروا دیجئے مولوی صاحب آج، تو اجتماعی دعا اس وقت ہوتی ہے۔ ورنہ نماز کے بعد، نماز سے پہلے، اذان کے بعد، اذان سے پہلے ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ امام صاحب دعا نہیں کیے تو آپ بھی نہ کریں، بلکہ نماز کے بعد تو دعا قبول کرنے کی ایک اوقات میں سے ایک وقت ہے،
आदमी नमाज पढ़ लेने के बाद दुआ मांगे, वो दुआ अल्लाह ताला एक्सेप्ट करता है। अजान के बाद दुआ अल्लाह ताला सुनता है, मतलब सुनता तो हर वक्त है, लेकिन कबूलियत की ये घड़ी है अजान के बाद। इफ्तार के वक्त आदमी दुआ मांगे, वो भी दुआ अल्लाह ताला सुनता है। कोई आदमी सफ़र में हो तब दुआ मांगता, तब अल्लाह ताला सुनता है। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद कोई दुआ मांगता तो उसकी दुआ अल्लाह ताला सुनता है। और सुनता क्या, कबूल करता है। ये कबूलियत की वक्त है। अब इमाम साहब दुआ मांगे ना मांगे, आपको मांगना है। अगर आप नहीं मांगते ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन इज्तिमाई दुआ अगर नहीं करते हैं तो इमाम के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं, आपने दुआ नहीं किया, कहाँ भाग रहे हैं। अब उसकी बीवी परेशान है, भाई उसका काम ख़त्म किया, उसको जाने दिया जाए। अब आपको दुआ मांगने तो आप मांगिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा। अब इमाम साहब को एक चीज़ मांगना हो, या अल्लाह मुझे दौलत दे दे, या अल्लाह मुझे ठीक कर दे, आमीन वाह। अरे वो बड़ी जल्दी दुआ मांग लिया आपने। इमाम साहब को उतनी ही मांगना तो उतनी उसने मांगा। आपको जितना मांगना है आप मांगिए, लेकिन कभी कभी इज्तिमाई दुआ, जैसे अभी कोरोना वायरस है, अब मौलवी साहब दुआ कर दीजिए, फिर से बीमारी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, घर के अंदर फिर गरीबी आने वाली है, तो ऐसे वक्त पे इज्तिमाई दुआ किया जा सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी से ये साबित नहीं है कि अल्लाह के नबी ने हर नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ की हो, साबित नहीं है, कभी नहीं। हाँ, अल्लाह के नबी ने इज्तिमाई दुआ वक्त पे आपने किया है, वक्त पे आप इज्तिमाई दुआ करवा सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज के बाद अपने खुद से दुआ मांगिएगा। क्या मांगिएगा, अल्लाह और आपके दिल का वो मामला है। अब इमाम साहब ऐलान कर के बोलेंगे तो आप समझिएगा, आमीन आमीन कहने से तो चलेगा। इमाम साहब अरबी में दुआ मांग रहे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना, अब आप क्या समझिएगा, आप आमीन आमीन बोल रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं आपको समझना चाहिए ना। तो कम से कम आप जो भी दुआ मांगिए, अल्लाह ताला तमाम ज़बानों को जानने वाला है। आप खुद से मांगिए, उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, फरमाया अल्लाह से मांगो तो बिल्कुल तन्हाई एकसू हो करके और खुशू और खुजू के साथ अल्लाह ताला से मांगो। रब्बुल आलमीन सबकी दुआओं को सुनने वाला है। इस वजह से आपको जितना चाहिए उतना मांगिए। इमाम साहब को दुआ मांगना तो मांगे, ना मांगना ना मांगे, सलाम फेर दिया, उनका काम ख़त्म हो गया। आपको नहीं मांगना है जा सकते हैं, लेकिन दुआ मांगना चाहिए, क्योंकि हर कोई दुआ का भूखा है। अबुल कलाम सल्फ़ी भी दुआ मांगता है, सफ़र में तब भी, यहाँ पे है तब भी, नमाज के बाद भी। अब आप नहीं मांगिएगा तो इसका ये मतलब नहीं कि फ़र्ज़ नमाज के बाद इमाम साहब नहीं मांगे तो आप नहीं मांगिएगा, ऐसा नहीं है। दुआ तो मांगना ही चाहिए, क्योंकि दुआ के बगैर है ही नहीं। दुआ के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बताए, आई हारिस तमीमी तुम नमाज़ पढ़ लेने के बाद ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, मैंने ये नहीं कहा मांगो, आपने ये नहीं कहा मैं भी मांग रहा हूँ तुम भी मांगो, ऐसा कहा मांगो। तो दुआ मांगने का है हुक्म, लेकिन ये इज्तिमाई दुआ सही नहीं है। एक दूसरा जवाब, दूसरा सवाल, 2 अजान जुमा के दिन, 2 अजान, एक अजान 12 बजे, एक अजान 12:30 बजे, ठीक है। हाँ, माइक में दूसरे वाली बगैर माइक से। तो ये सिस्टम पहले के ज़माने में हज़रत उस्मान गनी के दौर में 2 अजानें दी जाती थी, जहाँ पे लोग बाज़ार में बिज़ी रहा करते थे, एकदम मस्त रहा करते थे। उस वक्त टाइम टेबल का मालूम नहीं था, तो उस वक्त एक अजान बाज़ार में दिलवाया करते थे, बाज़ार में। तो लोग पता है अब तो जुमे का टाइम हो गया भाई, चलो चलो चलो, तो सब बंद किया। अब उसके बाद दूसरी अजान दी जाती थी जब खुतबा शुरू हुआ करता था। अब तो आदमी के पास मोबाइल है, अब तो घड़ी है, अब तो माइक है, एक अजान में सबके कानों में आवाज़ जाया करती है। इस वजह से अभी 2 अजान की ज़रूरत नहीं है, एक ही अजान दिया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। नबी के दौर में एक अजान, हज़रत उमर फ़ारूक के एक ज़मान, हज़रत अबू बकर की ज़िंदगी में एक अजान, हज़रत उस्मान गनी ने 2 अजान दिलवाई। उस वक्त बाज़ार में लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा करते थे तब। अभी भी आप खाना काबा चले जाइए, मक्का चले जाइए, मेरे भाइयों 2-2 अजानें नहीं होती है, एक ही अजान दी जाती है। और कहीं पे अगर दी जाती है कहीं पे, तो उसकी वजह यही बताई जाती है कि लोग दूर में रहा करते तो क्या अजान दी जाती है, लेकिन एक अजान देना ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा बेहतर है, एक ही अजान दी जाए। और आपके यहाँ बहुत से लोग बिज़ी हैं, वहाँ तक आवाज़ नहीं जाती है, तो एक अजान दिया जा सकता है। लेकिन अभी बेहतर यही है कि अजान तो आवाज़ पहुँच रही है, और सबको मालूम है 12:30 बजे खुतबा शुरू है, तो 12 बजे 12:15 बजे छोड़ करके घर को, दुकान को, मकान को, मस्जिद में पहुँच जाइए, एक ही अजान दी जाए, ये ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा है। अब बताइए तीसरा सवाल, टोपी नमाज का शर्त। टोपी क्या नमाज के लिए शर्त है? कुरान करीम की एक आयत है, खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, जब आप मस्जिद जाइए तो खूबसूरत बन करके जाइए, खूबसूरत। अब हमारे यहाँ क्या होता है, मस्जिदों में टोपी रख दिया जाता है। अब एक जगह मैं गया तो नमाज़ पढ़ने के लिए, किसी बरेली की हम पढ़ रहा था, अब टोपी नहीं थी, मेरे पीछे से टोपी पहना दिया। हाँ, तो आदमी टोपी नमाज के लिए शर्त नहीं है। नमाज के लिए क्या शर्त है? आपका शर्मगाह छिपा रहना चाहिए, वज़ू होना चाहिए, आप पाक होना चाहिए, ये शर्त है, ये ज़रूरी है। अब आदमी टोपी शर्त नहीं है,
आदमी टोपी पहनता है, कोई हर्ज की बात नहीं, पहन सकता है। पगड़ी बांध, अल्लाह के नबी पगड़ी टोपी सब आपने पहना है, लेकिन कोई आदमी टोपी और पगड़ी ना पहने फिर भी उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन मस्जिद में जाइए तो खूबसूरत बन करके जाइए। और हमारे इधर का माहौल है, कुर्ता पाजामा टोपी पहन करके जाने में अच्छा लगता है। तो जहाँ जैसा रंग है, जैसे सऊदी अरब में जाइए तो जुब्बा आदमी पहन के जाते हैं, जुब्बा, और ऊपर से वो पगड़ी वो बांध करके लोग सऊदी अरब में, खाना काबा मक्का मदीना जाइए तो वो सिस्टम है। वहाँ पैंट से जींस ये सब सिस्टम नहीं है। लेकिन जहाँ जैसा है, केरला चले जाइए, पैंट्स और शर्ट पहन करके आदमी नमाज़ पढ़ते हैं। तो नमाज़ पढ़ते समय अल्लाह ताला टोपी नहीं देखता है, आपकी नीयत को देखता है। कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि सजदा करें तो पीछे वाला आपका दिखना नहीं चाहिए। से ऐसा कपड़ा पहनिए जो आपके शर्मगाह की हिफाजत कर सके, ढांप सके। टोपी नमाज के लिए शर्त नहीं है, बगैर टोपी के कोई नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज हो जाएगी और मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन आदमी को टोपी पगड़ी रखना चाहिए, क्योंकि उससे खूबसूरती भी आती है। अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में पगड़ी और टोपी का इस्तेमाल किया है। बगैर टोपी का आदमी अगर पढ़ता है तो नमाज हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आदमी खूबसूरत बन करके मस्जिद में जाना चाहिए। और चौथा सवाल बोलिए। बच्चा या बच्ची का पेशाब, हाँ, बच्चा या बच्ची का पेशाब अगर लग जाए तो नमाज होगी कि नहीं होगी? अगर दूध पीने वाला बच्चा हो, दूध पीने वाला, खाता पीता ना हो, अगर उसका पेशाब लग जाए तो छींटा मार लीजिए, छींटा, पानी का छींटा मार लीजिए और आप नमाज़ पढ़ लीजिए, आपकी नमाज़ हो जाए। लेकिन बच्ची है और अगर उसका छींटा पड़ जाए तो आपको फिर धुलना पड़ेगा। लड़की का छींटा धुलना पड़ेगा, और अगर बच्चा का छींटा है तो आप पानी मार लीजिए और आप नमाज़ पढ़ लीजिए, आपकी नमाज़ हो जाएगी। और बोलिए। अगर कोई आईडी लेकर, जैसे अभी बैंक का काम करते हैं और उसमें 10% वो मेहनताना लेते हैं, तो ये लेना कैसा है? 1000 में 10 टका काटता है, या 100 उठाता है, 10,000 उठाता है तो उसमें 100 रुपया काटता है। देखिए, आईडी लेकर के कोई आदमी, जैसे किसी ने मेरे ऊपर पैसा भेजा 1000 रुपया, और मैंने कहूँगा भाई 1000 आपको नहीं दूंगा, बल्कि 990 रुपया मैं आपको दूंगा, 10 रुपया मैं रख लूँगा। हाँ, आधार ATM से, क्योंकि आप भाई यहाँ से जाते, कटिहार जाते, आने जाने में आपका 100 रुपया खर्चा हो जाता, तो वो खर्चा मैं आपको बचा रहा हूँ, ये 10 रुपया लूँगा, मुझको भी इसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से आदमी पैसा ले सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि उसमें उसका फ़ायदा वो कह करके ले रहा है। लेकिन लोन का जो मामला, भी लोन के ज़रिए से बिजनेस करना ये हराम है। लोन के ज़रिए से बिजनेस नहीं कर सकता है, और सामने वाला ज़बरदस्ती उससे नहीं लिया जा सकता पैसा। अरे भाई मत लीजिए, तो मत वहाँ करवाइए, आप जाइए वहीं से पैसा निकालिए। कोई आदमी अगर पैसा ज़बरदस्ती किसी से नहीं लेना चाहिए, खुशी खुशी भाई 10 रुपया हम लेंगे भाई, क्योंकि मेरा भी बच्चा है, मेरी भी बीवी है, इसी से मेरी कमाई है, 10 रुपया मैं लूँगा तो आपको मैं दे रहा हूँ, आपके लिए सहूलत है। तो बहुत से लोग ऐसा कर देते हैं, उसको 100 रुपया 50 रुपया दे दिया जाता है, कोई हर्ज की बात नहीं, दिया जा सकता है। और बोलिए। इमाम साहब के पीछे मुक्तदी है और इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं और सजदे में चले गए। अब मुक्तदी इधर से आया और वो उनको सूरह फातिहा नहीं पढ़ पाए, वो भी रुकू में चले गए, तो क्या उनकी वो रकात होगी या नहीं होगी? इमाम अलबानी ने कहा कि अगर उसने रुकू पा लिया तो उसकी वो रकात मानी जाएगी। इमाम नासरुद्दीन अलबानी ने कहा है कि अगर उसने वो रकात, रुकू और सजदा, क्योंकि एक रकात में 3 चीज़ें हैं, क़याम है, एक रुकू, एक सजदा है, ठीक है, 3 चीज़ें हैं, तब एक रकात पूरी होती है। अगर उसने रुकू पाया है तो उसकी रकात मानी जाएगी, इमाम अलबानी कहते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी एक रकात और पढ़ लेता है तो हो जाएगी, उसकी कोई हर्ज की बात नहीं है, सूरह फातिहा पढ़ लेना, पढ़ ले। लेकिन इमाम, हाँ थोड़ा सा ही रह गया, क्या मैंने अजान दिया, इकामत दिया, इमाम का पास नमाज पढ़ रहा हूँ, सूरह फातिहा नहीं पढ़ने नहीं सके, सुना पढ़ते पढ़ते वो चले गए रुकू में। जी, तो ये आपकी ये इमाम साहब से आप बोलिए कि भाई आप राजधानी की स्पीड में नमाज मत पढ़ाइए, सुभान अल्लाह, राजधानी की स्पीड में नमाज मत पढ़ाइए। आप नमाज जब भी पढ़ाइए कम से कम पीछे का ख्याल कीजिए। आप तो स्पीड में पढ़ लेते हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह में रहते हैं, आप रुकू में चले जाते हैं। आप उसको पहले मना कर दीजिए, वरना आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि सूरह फातिहा आपको भी पढ़ना पड़ेगा। आपकी यहाँ मजबूरी नहीं है, आपकी मजबूरी नहीं है, क्योंकि आप अचानक में आए और आप वो रुकू में चले गए, आप भी रुकू में चले गए, तब आपने फिर आपने रकात पा ली, लेकिन आप उनके साथ खड़े हैं। अब इमाम साहब कितना स्पीड पढ़ाते कि रुकू में गए और आपने सूरह फातिहा नहीं पढ़ पाए। तो इमाम साहब को चाहिए नमाज बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, सूरह फातिहा आराम आराम से पढ़ा जाए, ताकि पीछे के लोग नमाज सूरह फातिहा पढ़ लें, क्योंकि उसका जब तक वो ना सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे उसकी नमाज नहीं होगी, ख्याल होना चाहिए।
اور ایک بات انہوں نے اور پوچھا کہ اگر امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہوں اور بالکل قرآن پڑھنے کا طریقہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہو، پیچھے حافظ ہے، پیچھے قرہ ہے، تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ وہاں کے صدر اور سیکریٹری اور مسجد کے ذمہ دار کو چاہیے کہ ایسے حفاظ اور ایسے قاری اور ایسے مولوی کو نماز پڑھانے کے لیے رکھیں جو بہترین قرآن پڑھنے والا ہو، بہترین قرآن پڑھنے والا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں امامت وہ کرائے جو سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، سب سے بہتر وہ ہو جو قرآن پڑھنے والا ہو، وہی امامت کرائے۔ اب بڑھیا قرات کرنے والا پیچھے پڑا ہوا ہے اور آپ نے ایسے لوگوں کو رکھ دیا جو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی کوشش کیا جائے، اگر مجبوری ہے، کوئی ویسا نہیں ہے، وہی بچے ہوئے امامت کرا دیتے ہیں تو پیچھے نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چلیے ختم کیا جائے۔ فجر کی نماز کے بعد مطیع الرحمان صاحب ہیں، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے تقریر کریں گے۔ ابھی ایک نام اور اس مدرسے کے صدر حافظ صدام حسین صاحب ہیں، وہ نعت پڑھنا چاہتے ہیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اب اذان ہونے والی، نماز پڑھ دی جائے گی۔ چلیے۔